Good morning, dear students. So, today we will start with the fifth chapter, that is language of chemistry. You already have some idea about the content of this chapter because you have already studied this chapter in class 7th. So, after finishing this chapter, you will be able to know about the symbols and elements and their valencies. Then you will be able to know about the symbols and symbols of radical and their valencies. You will be able to make formula of the compound by using these symbols and valencies, and then you will be able to write the chemical equation from the word equation, because now you know the formula, so you will be able to make to write a proper chemical equation using the symbols and formula of the reactants and the product. You will be learning about the law of conservation of mass, and most importantly in this chapter you will be learning about how to balance a chemical equation. Okay, and what information do you get after the balancing, and what are the limitations of chemical equation. So, let us start with chemical symbols of element. Now, what is actually a chemical symbol? You all know that it is a shorthand representation, means a short form of representation of element. Rather than writing the full name of the element, we represent it with a letter, and thus making it a short representation. Every element has its own unique symbol. No two elements can have the same symbol. And from where these symbols were derived? So, the symbols were, the people that time people were using these symbols with using the symbols with many things, like symbols of planets. They were putting the symbols of planets also. So, this gave them little idea that now okay, we will use these symbols for representing the planets. For example, then that time these 7 metals were discovered, that is gold, silver, iron, mercury, tin, copper and lead. So, they associated every metal to the planets. So, this way they were associating symbols with everything. So, you know, the use of symbols was not new for chemistry, because these were some symbols which people were using for communication in cave. They were making these symbols on their caves, and thus they were communicating using these symbols. So, you know, till now 180 elements are discovered, and what is symbol? It is abbreviation used to denote these. First step in this case was taken by John Dalton, who actually gave these atomic symbols using circles, and then in that circle some have lines, some have dots, some had some letters written on them. So, these were the elements. For example, you can see hydrogen, it is a circle with a dot inside. Oxygen, carbon, it's the circle is fully black. Sulfur, they have drawn 2 lines. So, these were some symbols which were used in the starting, but when they were making compounds out of these elements, it was very difficult to remember. So, now you can see they are making the compound. So, when they are making the compound, it was very difficult to learn actually that how this will happen. So, because sometimes these figures were very difficult to remember. So, then John Jacob Berzelius actually gave this idea of writing that first letter of the name in capital will be the symbol of element. For example, carbon C, hydrogen H, oxygen first letter is O, nitrogen first letter is N. So, all these are written in capital. For example, hydrogen, you see it is written with capital, then O, oxygen. So, first letter was given to the symbol. But what happens, suppose hydrogen was discovered, and after that it's okay, we have given this H to the symbol, but later on helium was discovered. Now, H is already gone. So, what they have said that okay, when the 2 elements have names starting with same alphabet, then first 2 letter will be taken as their symbol. तो helium का symbol क्या हो जाएगा?
H and E. But one thing which you have to remember, that first letter is capital and second letter is small letter. Okay, so this you have to remember, this is the rule. When you are taking two alphabets, then first letter has to be capital letter and second letter has to be a small letter. And what are the examples? Carbon, cobalt, calcium, chromium, chlorine, all are starting with C. So what they have done, for carbon they have taken C, for cobalt they have taken CO, then for calcium they have taken Ca, and for chromium they have taken Cr. And why not Ch? Because some elements do not follow this rule. For example, magnesium, ठीक है, मैग्नीशियम का जो अगर रूल से फॉलो करें तो इट शुड बी Ma, बट द फॉर्मूला इज Mg, तो ये उस रूल को फॉलो नहीं करता है. मैंगनीज, ओके, अनदर एग्जाम्पल इज मैंगनीज. तो मैंगनीज जो है वो है आपका मैंगनीज, इसमें भी आप देखेंगे दे डोंट फॉलो दैट फर्स्ट टू लेटर वाला रूल, क्योंकि मैंगनीज का फॉर्मूला है Mn. सो सेम वे क्रोमियम भी Cr से डिनोट होगा एंड क्लोरीन Cl से डिनोट होगा. दैट मीन्स फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर दे हैव टेकन. Then what does these symbols also represent? These symbols represent an atom of that element. अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई सिंबल लिख रहे हैं, तो जब आप उसको लिखते हैं तो उसका एक एटम होता है. अगर मैं ऑक्सीजन का सिंबल लिख रही हूँ O, तो दैट मीन्स ये जो O है, दिस इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इस तरीके से जो भी सिंबल होता है, इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. सो H रिप्रेजेंट्स hydrogen also and one atom of hydrogen. C represent element carbon as well as one atom of carbon. अब कुछ जो सिंबल्स हैं वो उनके जो आपके इंग्लिश नेम्स हैं उसको फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आयरन. अब आयरन का सिंबल अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट शुड बी I. ठीक है, चलिए आयोडीन को हमने दे दिया तो हम उसको IR ले लेते, लेकिन उसका सिंबल है आयरन का Fe. तो वाई दिस Fe फॉर आयरन? क्योंकि ये उसका इंग्लिश नेम नहीं लिया है, उसका लैटिन या जर्मन या ग्रीक नेम से भी लेटर्स को लिया गया है. तो ये इसका जो नाम होता है आयरन का वो होता है फेरम. दिस इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन, फेरम. तो उस फेरम से उन्होंने क्या बोला कि इट शुड बी Fe, क्योंकि फेरम से फर्स्ट टू लेटर्स ले लिए उन्होंने, वन फर्स्ट कैपिटल एंड सेकेंड स्मॉल. उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम का Na होता है क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है दैट इज नेट्रियम. पोटेशियम इज केलियम. कॉपर का क्यूप्रम Cu. एंड देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल. किसी भी दो एलिमेंट्स का सिंबल सेम नहीं होगा. So you can see here this is a table given where it shows that name in English, name in Latin or Greek and their symbol. तो ये वाले जो हैं ये उसको फॉलो नहीं करते. अब आप यहाँ पे देखेंगे सिल्वर जो है वो है आर्जेंटम. तो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट टू लेटर इट शुड बी AR, बट अगेन इट इज़ AG. तो कुछ ऐसे हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनके सिम्बल्स उनके इंग्लिश नेम से मैच नहीं करते हैं, बल्कि दे match their Latin or Greek name. And these are the symbols and elements of some English alphabet. इसमें फर्स्ट 20 आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट थोड़े आपको लग रहे हैं वो आप इसमें से सिंबल को याद कर लीजिए. आई सजेस्ट कि आपको सारे याद होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन लर्न, बट फर्स्ट 20 तो आपको याद करने ही करने हैं. So write the names and symbols of first 20 elements that you have studied in class 6th and 7th in your copies. Now coming up to the next concept is valency. What is valency? Valency is the combining capacity of an atom of an element or a radical with the atoms of other elements or radicals. And why this combination? To get the stable state by forming molecules. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से देखनी है हमें एग्जाम्पल. हमें हाइड्रोजन जो है
वो उसकी वैलेंसी हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो जो दूसरा एलिमेंट इसके साथ फार्मूला बनाएगा, क्रिस क्रॉस फार्मूला ऑलरेडी यू ऑल नो, तो जब वो फार्मूला बनाएगा तो हमें दूसरे एलिमेंट की, तो आपको दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी पता चल जाएगी। तो HCl फार्मूला देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी तो क्लोरीन की भी 1 होगी, एंड दैट इज़ वाई द फार्मूला बिकम्स HCl। सो when you know the valency of hydrogen, और आपके इसके साथ जो भी आपका एलिमेंट लगेगा उसकी वैलेंसी आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंसी आएगी वो उस दूसरे एलिमेंट की होगी। फॉर एग्जांपल H2O हाइड्रोजन के ऊपर 2 है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन की है 1। तो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंसी आएगी वो किसकी होगी, जो दूसरा एलिमेंट आपने उसके साथ लिया हुआ है। एग्जाम्पल देखेंगे NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर 3 है, यानी नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, वो 3 है। सो दिस वे यू कैन find out or we can define valency as the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that element or radical। तो जैसे CH4 है तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर 4 है, यानी ये 4 किसकी वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी है। तो इस तरीके से आप दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो आपको पता है और दूसरे एलिमेंट की आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। So it is noticed that the valency of an element increases from 1 to 4 and then again decrease to 1। तो ये हमने जब वैलेंसी पढ़ी थी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, तो मैंने आपको एक वो बताया था कि आप जैसे आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखे, तो अब आप इसकी वैलेंसी का जो फॉर्मेट चलता है वो इस तरीके से चलता है। तो हाइड्रोजन की 1, ठीक है, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, और उसके बाद 1 2 3 4 3 2 1 0। तो नेक्स्ट होगा 1 2 3 4 3 2 1 0। तो इस तरीके से हम 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी इजीली इस चार्ट के थ्रू लर्न कर सकते हैं। So these are the name and symbols of first 20 elements which you have to learn. Again you can see 1 0, पहला 1 फिर 0, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 0, उसके बाद आप अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 एंड 1 2, उसके आगे 3 4। जिस तरीके से ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल और वैलेंसी आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, एंड देन यू हैव टू लर्न इट। देन व्हाट आर वेरिएबल वैलेंसीज, दिस ऑलरेडी वी हैव डन। विल रिवाइज कि क्या है वेरिएबल वैलेंसी। सर्टेन एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा आइडिया देती हूँ, रिवाइज कराते हैं, एंड देन वी विल गो फर्दर। हाउ डू यू फाइंड आउट द वैलेंसी? बाय यूजिंग द एटॉमिक नंबर। वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन हियर। ओके, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे। You all know the atomic number of oxygen is 8, ठीक है, 8 है उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब उसके फर्स्ट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। नाउ इट वांट टू अचीव ऑक्टेट। व्हाट इज ऑक्टेट? दैट इज गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 हो जाएं। तो 6 में क्या ऐड करेंगे हम, 2 ऐड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ 2 8 हो जाएगा ये। लेकिन ये जो 2 8 है, इसके लिए इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने में ऐड किए या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, टेकन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, टेकन 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं वही वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या आ गई, 2, बिकॉज इट हैज़ टेकन 2 electrons to complete its octet. Let's see another example. We'll take the example of sodium. Sodium atomic number is 11. So configuration will be first shell में 2, दूसरे shell में 8,
तो अब जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, सो 2 + 8 10 + 1 11. नाउ इट वांट्स टू अचीव ऑक्टेट, तो उसके लिए क्या इजी है, उसके लिए इजी ये है कि जो लास्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको वो किसी को दे दे, तो इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, गिव्स, तो जब जो भी इलेक्ट्रॉन देता या लेता है जितना नंबर वही उसकी वैलेंसी होती है, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. इट वाज जस्ट आइडिया आपको बताने के लिए कि क्या है ये. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू टेक आउट द वैलेंसी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स, नील बोर वाला 2n² वाला, ये सब हम कर चुके हैं, तो उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं. तो उसके हिसाब से व्हाट हैपन्स दैट 1 एलिमेंट शुड हैव 1 वैलेंसी ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है, सर्टन एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी. अब वेरिएबल वैलेंसी में क्या है कि जो जितने भी वैलेंसीज़ हैं उस एक एलिमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम छोटा बड़ा उसका देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर की जो वैलेंसी है वो है 1 और 2, मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है, तो इसमें छोटी कौन सी हुई, छोटी 1 वाली हुई. तो जो 1 वैलेंसी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लोअर वैलेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं OUS, तो ये हो जाएगा क्यूप्रस. और जो बड़ी वैलेंसी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक, दैट इज़ क्यूप्रिक. आयरन का एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन की 2 वैलेंसी हैं, आयरन 2 और आयरन 3, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 2 वाली, सो 2 के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सो इट विल बी फेरस, एंड बड़ी वाले के साथ फेरिक. तो ये पहले का टाइम यूज़ करते थे. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी आर सिंपली राइटिंग कॉपर 1 एंड कॉपर 2, तो बस रोमन न्यूमरल के साथ कॉपर के साथ 1 लगा देंगे और कॉपर के साथ 2 लगा देंगे. ये अभी नया मतलब ये चल रहा है. वी डोंट राइट क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक नाउ डेज. ये हैं कुछ वेरिएबल वैलेंसी जिनको आपको याद करना है, ठीक है. इनके एग्जाम्पल्स भी कि क्या क्या हैं, मतलब वैलेंसीज दोनों की, और उसको मेटल्स में आपने देख लिया, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉपर और आयरन का. बट नॉन मेटल्स आल्सो शो वेरिएबल वैलेंसीज, एंड व्हाट आर दोज नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, they also show variable valency. And in your syllabus they have given only sulfur has valency of 2, 4 and 6, so 3 valencies are there. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सल्फर के ब्रैकेट में 2 रोमन न्यूमरल में, सल्फर के ब्रैकेट में 4 रोमन न्यूमरल में, एंड सल्फर के ब्रैकेट में 6 रोमन न्यूमरल में. Now coming up to the next is radical. What are radicals? It is a group of atom of different element that behaves as a single unit with a positive or negative charge on it. तो दोनों चार्ज होते हैं उस पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं उस पर, तो रेडिकल पे. और वो क्या होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. 2 अलग अलग एलिमेंट्स अगर मिल रहे हैं तो कंपाउंड बनता है, लेकिन यहाँ पे वो 2 मिल के भी उन पे चार्ज रहता है, तो उनको हम रेडिकल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं केमिकली, सो दे फॉर्म अ कंपाउंड से वाटर. नाउ दिस इज कंपाउंड, देयर विल बी नो चार्ज ऑन इट. लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से कंबाइन करते हैं कि उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, तो ये आपका रेडिकल बन गया हाइड्रोक्साइड. समझ में आ गया. तो जो चार्ज्ड एंटिटीज़ हैं वो रेडिकल्स हैं, और जो जिनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है वो कंपाउंड्स हैं. तो इस 2 रेडिकल होते हैं. अगर पॉजिटिव वाला है तो उसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे, और उसका दूसरा नाम है कैटायन. और अगर हम एसिड रेडिकल उसको बोलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उनको हम बोलते हैं एनायंस. तो ज़्यादातर जितने मेटालिक आयंस हैं और अमोनियम आयन हैं वो बेसिक रेडिकल हैं, और जितने भी नॉन मेटालिक एटम्स हैं उनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, और उनको हम एसिड रेडिकल्स बोलते हैं. तो चलिए देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होती है. जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो यू शुड नो दैट इट हैज़ गॉट 2 पार्ट्स. वेन एवर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इट हैज़ गॉट 2 पार्ट. अभी हमने एग्जाम्पल वाटर का लिया था, इसी का देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं NaCl. सो देर आर 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज द पॉजिटिव पार्ट एंड सेकेंड इज द नेगेटिव पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट जो पॉजिटिवली पार्ट होता है उसको हम आगे लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो जब सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखेंगे तो Na की जो पॉजिटिव चार्ज होता है Na के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड इट प्रॉपरली प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो अगेन.
the charges on these radicals show their combining capacity, that is valency. अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव यानी इसकी वैलेंसी 1, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज यानी इसकी वैलेंसी 1. So it shows the combining capacities also. Okay, now this table you have to learn. Okay, बहुत important table है ये वाला, जो आपका पॉजिटिव रेडिकल ये जितने भी दिए हुए हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको आप याद करेंगे. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मूला मेकिंग. अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप फार्मूला नहीं बना सकते हैं ठीक से. तो आई वुड से कि प्लीज़ लर्न देम प्रॉपरली एंड राइट देम इन योर कॉपीज़.